Hello students, in this video we are going to cover Sonnet 106. The subtitle of the sonnet is When in the Chronicles of Wasted Time. So before going to the poem or the sonnet 106, we should know something about William Shakespeare because he is the writer of these sonnets. William Shakespeare was born on 23rd April 1564 and died on 23 April 1616. Was an English playwright, poet and actor, and widely regarded as the greatest writer in English language and world's greatest dramatist. He is considered as the world's greatest dramatist. Okay, तो वर्ल्ड का सबसे ग्रेट ड्रामेटिस्ट माना जाता है इनको. Then there are some more points that you can make note of it. Okay, these are some factual point on Shakespeare. I have explained these all points in another video that I have made on Sonnet 18. I will be giving a link in the description box of Sonnet 18. You can go and watch. I have explained it in detail in that video. His extant work included almost 39 plays which he has written with some collaborations with other writers, 154 sonnets and some long narrative poems. Some of the famous plays that he has written are Romeo and Juliet, Macbeth, Othello, The Tempest, Hamlet. These are all some famous plays that he has written. We all know about these names. Except this, there are many plays that he has written, and those include the historical plays on some Roman and English emperors. ठीक है, कुछ रोमन और इंग्लिश एम्परर्स के ऊपर भी इन्होंने कुछ बहुत सारे प्लेज लिखे हैं. जो इनका मेन जॉनर है प्ले लिखने का वो है ट्रेजेडी एंड कॉमेडी. ओके, एंड हिज यूनिक स्टाइल ऑफ सोनेट इज आल्सो नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट. इनका जो सोनेट है, जो ये लिखते हैं सोनेट, इसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है. नाउ व्हाट इज सोनेट? आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस स्लाइड इन द Sonnet 18 video. I will be giving the link in the description box. You can go and watch the full video of Sonnet 18. So I will not be making this video so long in explaining this again in this video. So please go and watch that video for the detailed explanation of what is sonnet. Otherwise you can take the note of it. Shakespearean sonnet, how the Shakespearean sonnet are different from the other sonnets. ठीक है, I have given the detailed explanation of this too in that video. So please go and watch that video so that you can get the clear idea of what is sonnet and what is Shakespearean sonnet. Okay, so for the brief, I'm just going to tell you that this sonnet, Shakespearean sonnets, are divided into three categories as per the dedications that these poems are made to. So sonnet number 1 to 126, it is dedicated to a fair youth. ठीक है, we do not know who this fair youth is. We do not know who this fair youth is. कौन है ये fair youth, हमें नहीं पता. It's an unnamed young man. ये कोई भी हो सकता है. ठीक है, so there are many assumptions or speculations that who this fair youth can be, but there is no certain answer to it. So it is just dedicated to a fair youth. Okay, now the sonnet number 127 to 152 is dedicated to a dark lady, and sonnet number 153 and 154 is made to the Roman god of love, that is Cupid. Okay, so our sonnet number 106 comes under this. ठीक है, so our sonnet that we are going to see is dedicated to a fair youth. Okay, so we will be straight away going to the poem and we'll see what this sonnet 106 is. Okay, so let's go to the sonnet. This is the sonnet number 106, When in the Chronicles of Wasted Time by William Shakespeare. So before going in detail line by line explanation, I just want to say what is the structure of this poem or the rhyming scheme. As I have explained in the Sonnet 18 video too, that the Shakespearean sonnet is divided into 3 quatrains and 1 couplet at the end. Okay, quatrains means these 4 lines that you can see here, again these 4 lines, and
these 4 lines. So these are 4 lines and 4 lines quadrants, and the last 2 lines are the couplet. This all total makes 14 lines. Okay, so 14 lines, and they are rhyming in this way: A B A B. Then this is rhyming. These 4 lines are rhyming C D C D, and these 4 lines are rhyming E F E F, and these 2 lines, last 2 lines, are rhyming G G. This is the format of Shakespearean sonnet. I have explained this format in detail in the Sonnet 18 video, so please go and watch that video for your understanding. So we'll go to the line-to-line explanation of this poem now. As I have said that this sonnet is dedicated to a fair youth. ठीक है, तो ये जो पोएम है सोनेट है 106. सो ये जो सोनेट है 106, ये एक फेयर यूथ को डेडिकेट किया गया है, जैसे कि मैंने बताया. सो द फर्स्ट लाइन ऑफ द सोनेट इज व्हेन इन द क्रॉनिकल्स ऑफ वेस्टेड टाइम. क्रॉनिकल्स का मतलब होता है, क्रॉनिकल्स मीन्स हिस्ट्री बुक्स यू कैन से, या हिस्ट्री बुक्स यू कैन से. क्रॉनिकल्स का मतलब होता है एक ऐसी किताब जहां पे पुरानी कहानियां, मतलब कि ऐसी कहानियां जो ओल्ड डेज की कहानियां हैं, उसको क्रोनोलॉजिकली मतलब कि जिस क्रम में वो हुए हैं, मतलब जो पहले हुआ है वो पहले लिखा जाएगा, जो सेकंड हुआ है वो सेकंड, जो थर्ड है वो थर्ड. जो क्रोनोलॉजिकली जब हम किसी पुराने कहानी को लिखते हैं उसको हम क्रॉनिकल्स कहते हैं, क्रॉनिकल्स. और इसको हम हिस्ट्री बुक भी कह सकते हैं इन शॉर्ट. ठीक है. वेस्टेड टाइम का मतलब है यहाँ पे पास्ट, मतलब यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की. तो यहाँ पे शेक्सपियर फर्स्ट लाइन में ही बोलते हैं कि इन द क्रॉनिकल्स ऑफ द वेस्टेड टाइम. इन द क्रॉनिकल्स ऑफ वेस्टेड टाइम मतलब पास्ट का जो क्रॉनिकल्स है, जो पुरानी कहानियां हैं. ठीक है, अगर हम उसमें देखें तो आई सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ फेयरेस्ट वाइट्स. मैं डिस्क्रिप्शन देखता हूं उसमें बहुत सारे फेयरेस्ट वाइट्स के. फेयरेस्ट मतलब फेयरेस्ट वाइट्स को आप साथ में लो, मतलब फेयर पीपल. अब ये फेयर पीपल कौन हो सकते हैं? फेमस पीपल हो सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल मैन और विमेन की बात में यहाँ पे हो सकती है, और कोई किंग हो सकता है, कोई क्वीन हो सकती है, और एनीवन दैट डिजर्व्स टू बी इन द हिस्ट्री बुक और दैट डिजर्व्स टू बी रेड ऑन. ठीक है. सो दिस फेयर वाइट्स कैन बी एनीवन. वाइट का मतलब होता है, वाइट इज अ ओल्ड इंग्लिश फॉर पीपल. ठीक है, पीपल के लिए एक ओल्ड इंग्लिश है. ठीक है, तो यहाँ पे सभी को एक साथ बोलने के लिए, वो अलग से बोलना नहीं चाहते हैं कि मैन और वुमेन, वो सबको एक साथ रखने के लिए वो बोलते हैं फेयरेस्ट वाइट्स. ठीक है, तो जब कभी भी वो क्रॉनिकल्स पढ़ते हैं, जब वो, ठीक है, वेस्टेड टाइम्स की क्रॉनिकल्स मतलब हिस्ट्री बुक्स जब वो पढ़ते हैं, तब वो देखते हैं कि उसमें बहुत सारे फेयरेस्ट वाइट्स मतलब फेयर पीपल के डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं हिस्ट्री बुक्स में. हिस्ट्री बुक में हम पढ़ते क्या है? हिस्ट्री बुक्स में हम वही पढ़ते हैं, स्वाभाविक है. सो अब हम भी हिस्ट्री बुक पढ़ेंगे तो हमको वही मिलेगा. तो हम बहुत सारे लोगों के बारे में, बहुत सारे जो फेमस लोग हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं, उनके जो किए हुए काम हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, उनकी ब्रेवरी के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, उनके बर्थ और उनके डेथ के बारे में पढ़ते हैं. तो हम लोग बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं उन फेयरेस्ट वाइट्स के बारे में. तो शेक्सपियर भी वही बोल रहे हैं कि जब कभी भी मैं किसी क्रॉनिकल्स को उठाता हूँ पास्ट के, तो मैं डिस्क्रिप्शंस देखता हूँ किसके? फेयरेस्ट वाइट्स के. एंड ब्यूटी मेकिंग ब्यूटीफुल ओल्ड राइम्स. तो उस बुक्स में जो ओल्ड राइम्स होती हैं, यहाँ पे राइम्स का मतलब है पोएम. ठीक है, पोइट्री. तो मैं उन क्रॉनिकल्स में बहुत सारी ओल्ड पोइट्रीज पढ़ता हूं, और वो जो ओल्ड पोइट्रीज हैं बहुत ही ब्यूटीफुल हैं. ठीक है, बिकॉज दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्यूटी. वो इतनी ब्यूटीफुल क्यों हैं? वो इतने जो ओल्ड राइम्स हैं, ओल्ड पोइट्रीज हैं, वो इतनी ब्यूटीफुल क्यों हैं? बिकॉज वो ब्यूटी से इंस्पायर्ड हुए हैं. ब्यूटी मतलब यहाँ पे उन्हीं फेयरेस्ट वाइट्स के बारे में बात हो रही है. वो जो फेयरेस्ट वाइट्स हैं वो ब्यूटी हैं. ठीक है, उनकी खूबसूरती इन पोएम्स में लिखी गई है.
उसको बताया गया है इस पोएम के अंदर में। सो ये पोएम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है बिकॉज ऑफ दोज ब्यूटीज़, और दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम दोज ब्यूटीज़। ठीक है, तो जो ओल्ड पोइट्रीज हैं वो इन ब्यूटीज से इंस्पायर्ड होती हैं, इन फेयरेस्ट वाइट्स से इंस्पायर होती हैं, इन फेयर पीपल्स से इंस्पायर होती हैं, एंड सो दे आर सो ब्यूटीफुल। इन प्रेज ऑफ लेडीज डेड और लोनली नाइट्स, तो उसमें जो पोएम में किसको प्रेज किया गया है? जो ऐसे लेडीज जिनकी डेथ हो चुकी है आज के डेट में वो नहीं है। लेडीज यहाँ पर मतलब ब्यूटीफुल वुमेन्स की बात हो रही है, और किसी लवली नाइट्स के बारे में बात हो रही है। नाइट्स का मतलब होता है यहाँ पे द वन हु फाइट्स इन द वॉर। ठीक है, तो नाइट उनको बोल जाता है जो लड़ाई करते हैं जाके, जो फाइटर्स होते हैं बेसिकली बोलना चाहिए। ठीक है, उनको नाइट्स बोला जाता है। जो बहुत ही ब्रेव फाइटर्स होते हैं उनको नाइट्स बुलाया जाता है। ठीक है, आउट ऑफ रेस्पेक्ट। तो यहाँ पे जो आप ओल्ड क्रॉनिकल्स पढ़ते हो, जो हिस्ट्री बुक्स पढ़ते हो, उसमें आपको इन सभी लोगों के बारे में क्या मिलेगा? एक ओल्ड राइम्स मिलेंगे, ओल्ड पोइट्रीज मिलेंगे लिखे हुए, इनके रेस्पेक्ट में, इनको प्रेज करते हुए, इनकी तारीफ करते हुए ये सारे जो पोइट्रीज हैं लिखी जाती हैं। इसमें बहुत सारे लेडीज होते हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, लवली नाइट्स होते हैं। ठीक है, देन इन ब्लेजन ऑफ स्वीट ब्यूटीज बेस्ट। ब्लेजन का मतलब यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मतलब उनकी जो खूबसूरती है, उनकी जो ब्यूटी है, उसका बखान करते हुए एक लिस्ट ऑफ ब्यूटीज, लिस्ट ऑफ जो डिस्क्रिप्शंस दिए जाते हैं उनके बारे में। ठीक है, और वो सब डिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? जैसे कि उनके हाथ के बारे में बता दिए, उनके फुट के बारे में बता दिए, उनके लिप्स के बारे में बता दिए, उनके आईज के बारे में, उनके ब्रो के बारे में। तो पोइट्स जो होते हैं वो इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। तो उनकी ब्यूटीज को डिस्क्राइब करने के लिए वो उनके हाथ के बारे में बताते हैं, उनके फुट के बारे में बताते हैं, उनके लिप्स के बारे में बताते हैं, उनके आईज के बारे में बताते हैं, उनके ब्रो के बारे में बताते हैं, उनके फेस का डिस्क्रिप्शन, उनके बॉडी का डिस्क्रिप्शन, वो कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिस्क्रिप्शंस हैं। तो आप जब कभी भी किसी ओल्ड नाइट्स के बारे में या किसी ओल्ड लेडीज़ के बारे में जब आप पढ़ोगे, जब आप उनके ऊपर पोइट्रीज पढ़ोगे, तो पोइट्स जो होते हैं वो इस तरीके से उनको डिस्क्राइब करते हैं। आई सी देयर एंटीक पेन वुड हैव एक्सप्रेस्ड इवन सच अ ब्यूटी एज यू मास्टर नाउ। ठीक है, तो आज मैं देखता हूं कि उनकी जो एंटीक पेन है, यहां पे एंटीक पेन का मतलब क्या है? यहां पे पोइट है। ठीक है, और यू कैन से जिस पेन से वो लिखते हैं पोइट्री को, इसलिए वहां पे एंटीक पेन यूज किया गया है, लेकिन एंटीक पेन को आप पोइट की तरह लिख सकते हो। आई सी देयर पोइट वुड हैव एक्सप्रेस्ड, वो जो पोइट्स हैं उन लोगों ने अपनी जो फीलिंग्स हैं इन सभी लोगों के बारे में जब वो लिख रहे होंगे तो वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे होंगे, है ना। तो आई सी देयर एंटीक पोइट वुड हैव एक्सप्रेस्ड इवन सच अ ब्यूटी एज यू मास्टर नाउ। तो वो सारे पोइट्स जो जितनी सारी जो ब्यूटी जो है उसको डिस्क्राइब किए होंगे, वो सारी ब्यूटी आज तुम पोजेस करते हो। तुम मतलब किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे यू मतलब कौन है? फेयर यूथ, जिसको डेडिकेट किया गया है ये पोएम। ठीक है, तो यहाँ पे यू मतलब है फेयर यूथ। अब ये फेयर यूथ शेक्सपियर का फ्रेंड हो सकता है, लवर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इवन सच अ ब्यूटी एज यू मास्टर नाउ, तो आप अब तुम्हारे अंदर जो ये ब्यूटी है, तुम्हारी जो खूबसूरती है, ये सारी खूबसूरती वो सारे पुराने पोइट्स ने एक्सप्रेस किया है। ठीक है, या जो अगर आज तुमको वो देखते तो वो सभी तुम्हारी ब्यूटी को इस तरह से एक्सप्रेस करते जैसे उन लोगों ने पुराने लोगों के बारे में एक्सप्रेस किया है। सो ऑल देयर प्रेजेस आर बट प्रोफेसीज। सो इसका मतलब ये हुआ कि उनके जितने भी प्रेजेस थे, मतलब जितनी भी उनकी तारीफ जो वो लिखते थे पोइट्री में, वो सभी क्या थी? प्रोफेसीज थी। प्रोफेसीज का मतलब होता है प्रिडिक्शन। ठीक है, मतलब कि जो फ्यूचर में होने वाला है उसको आप पहले ही बता देते हो, दैट इज प्रोफेसी। तो उन लोगों ने पहले ही पोइट्री में जितनी खूबसूरती तुम्हारे बारे में लिखनी थी वो सब तुम्हारे जन्म से पहले ही लिख दिया था उन लोगों ने। ठीक है, उन सभी पोइट्स ने। ठीक है, तो वो जो पोइट्स थे इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि उन लोगों ने तुम्हारी खूबसूरती जो आज तुम पोजेस करते हो, वो सारी खूबसूरती उन लोगों ने पहले ही पोइट्री में, अपनी पोइट्री में लिख दिया था।
ठीक है। तो वो सारे प्रेजेस जो हैं वो क्या थे, प्रोफेसीज थे जो उन लोगों ने लिखे थे। ऑफ दिस आवर टाइम ऑल यू प्रीफिगरिंग, ठीक है। तो अब जो भी तुम अभी तुम्हारे पास जो भी है, तुम जो पोजेस करते हो, ठीक है, वो सारी चीजें तुम्हारे जन्म से पहले ही इन लोगों ने, इन पोइट्स ने लिख दिया था, ठीक है। इसका मतलब यही है कि आज जो तुम पोजेस करते हो, आज जो तुम हो एक्चुअली में, तुम्हारी जो ब्यूटी है, इसके बारे में जो पुराने पोइट्स हैं इन लोगों ने पहले ही लिख रखा है, ठीक है। एंड फॉर दे लुक्ड बट विथ डिवाइनिंग आईज, बिकॉज वाई दे हैव रिटन ऑल दीज इन द पास्ट ओनली, ठीक है। वॉट यू आर पोजेसिंग नाउ, हाउ दे हैव रिटन इट, बिकॉज दे हैव लुक्ड थ्रू डिवाइनिंग आइज। तो उन लोगों ने डिवाइनिंग आइज से क्या देखा था, तुम फ्यूचर को पहले ही देख लिया था। डिवाइनिंग आइज मतलब दैविक आंख, है ना, जिसमें आप फ्यूचर को देख सकते हो, ऐसी आंख जिसमें आप फ्यूचर को देख सकते हो। तो उन लोगों ने पहले ही फ्यूचर को देख लिया था, उन लोगों ने पहले ही ये देख लिया था कि तुम क्या हो, तुम्हारी ब्यूटी क्या है, तुम्हारी क्या, तुम कैसे दिखोगे, तुम कितने ब्यूटीफुल रहोगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उन लोगों ने पहले ही देख लिया था और उन सब चीज़ों को उन लोगों ने पोइट्री में डिस्क्राइब कर दिया था, ठीक है। तो दे हैड नॉट स्किल इनफ योर अर्थ टू सिंग, बट इवन दो दे हैव रिटन दीज ऑल थिंग्स, दे हैव द डिवाइनिंग आइज, इवन दो दे डू नॉट हैव द स्किल इनफ योर अर्थ टू सिंग, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों के पास में इतनी स्किल्स नहीं थी कि वो तुम्हें प्रॉपरली कंप्लीटली प्रेज कर सकें, ठीक है, तुम्हें कंप्लीटली प्रेज कर सकें। मतलब बेसिकली अभी तक तो पोइट ये बोल रहे थे, जो शेक्सपियर हैं वो ये बोल रहे थे कि हिस्ट्री में जितनी भी पोइट्रीज लिखी गई हैं, ठीक है, जो लेडीज डेड के ऊपर और लवली नाइट्स के ऊपर में, ठीक है, वो सारी पोइट्रीज, वो सारे डिस्क्रिप्शंस जो पोइट्री में लिखे गए हैं, ठीक है, वो सभी डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो तुमको आज तुम पोजेस करते हो। मतलब यहाँ पे अपने फ्रेंड को, यहाँ पे फेयर यूथ को बोल रहे हैं कि आज तुम पोजेस करते हो वो सारी खूबसूरतियाँ। तो ऐसा लगता है कि उन लोगों ने पास्ट में ही प्रोफेसी कर दी थी तुम्हारे ब्यूटी के बारे में, ठीक है, और आज उन सब चीज़ों को, उन ब्यूटी को तुम पोजेस करते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वो डिवाइनिंग आइज से देख पाते थे फ्यूचर को, ठीक है। देन इन द नेक्स्ट लाइन ही सेज दे हैड नॉट स्किल इनफ योर अर्थ टू सिंग, मतलब उसके बावजूद भी, इतना कुछ करने के बाद भी पोइट ये बोलते हैं कि उनके पास इतनी स्किल्स नहीं थी कि वो तुम्हें प्रेज कर सके, तुम्हें कंप्लीटली प्रेज कर सके। देन द लास्ट टू लाइन्स पोइट सेज फॉर वी विच नाउ behold these present days। तो फिर यहाँ पे पोइट लास्ट टू लाइन्स में खुद के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। अभी तक पोइट जो थे वो ओल्ड पोइट्स के बारे में बोल रहे थे, ठीक है, मतलब अपने से पहले जो पोइट्स थे, शेक्सपियर से पहले जो पोइट रहे होंगे उनके बारे में वो बोल रहे थे, जो वो पोइट्रीज लिखे हुए हैं। लेकिन इन लास्ट टू लाइन्स, ये दो लाइन्स में पोइट एक्चुअली खुद के बारे में बोल रहे हैं। ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, ठीक है, क्योंकि शेक्सपियर खुद भी पोएट है, तो वो खुद के बारे में बोल रहे हैं इस लास्ट के दो लाइन्स में। अभी तक पोएट जो थे वो किसके बारे में बोल रहे थे, अदर पोएट्स या पास्ट पोएट्स के बारे में बोल रहे थे, लेकिन अभी पोएट खुद के बारे में बोल रहे हैं। और वो बोलते हैं कि फॉर वी विच नाउ बिहोल्ड्स दीज प्रेजेंट डेज, ठीक है, हम जो आज इस प्रेजेंट डे में रह रहे हैं, हम विटनेस कर रहे हैं इस प्रेजेंट डे को, ठीक है, विटनेस। तो आज जो हम प्रेजेंट डे को विटनेस कर रहे हैं, वी आर हैविंग आइज टू वंडर, हमारे पास आंखें तो हैं देखने के लिए, ठीक है, हमारे पास आंखें तो हैं देखने के लिए, बट वी लैक टंग टू प्रेज, बट हमारे पास टंग नहीं है, मतलब हमारे पास जीभ नहीं है उनकी तारीफ करने के लिए। मतलब हमारे पास आंखें तो हैं लेकिन हमारे पास टंग नहीं है उनको प्रेज करने के लिए, ठीक है। तो ये लास्ट वन लाइन जो है ना, ये लाइन, लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप कोट करके रख लो। हैव आइज टू वंडर बट लैक टंग टू प्रेज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नाउ एज यू कैन सी इन द होल पोएम और सोनेट, द पोएट इज एडमायरिंग द फेयर यूथ, ठीक है, ही इज प्रेजिंग द फेयर यूथ, एंड फॉर प्रेजिंग द फेयर यूथ, ठीक है, ही
goes to the extent of the old poets that have written or that have described the beauty in their poetry, ठीक है, and he says that all the praises that the old poet has made in their poetry are for this fair youth, ठीक है, because जितने भी जो पोइट्रीज में, पुराने पोइट्रीज में जो पोइट्स ने जितने भी तारीफ़ें लिखी हुई हैं किसी के बारे में, वो सारी तारीफ जो है वो फेयर यूथ को मैच करती है। ये फेयर यूथ पोजेस करता है आज के डेट में, ठीक है। सबसे पहले तो पोइट ये बोलते हैं, फिर वो बोलते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ओल्ड पोइट्स हैं उन लोगों ने पास्ट में ही प्रोफेसीज कर दी थी इस फेयर यूथ के बारे में, ठीक है। एंड ऑफ दिस आवर टाइम ऑल यू प्रीफिगरिंग, तो यहाँ पे पोइट बोलते हैं कि जो फेयर यूथ है वो आज उन सभी चीज़ों को पोजेस करता है, और पोइट जो थे वो इस फेयर यूथ के बर्थ से पहले ही जानते थे कि फेयर यूथ कैसा होगा, ठीक है। तो उन लोगों ने उसकी जो ब्यूटी के ऊपर बहुत सारे पोएम्स पहले ही लिख दिए थे। कहने का मतलब ये है कि वो सारे जो पोएम्स पास्ट में लिखे गए थे वो इस फेयर यूथ के लिए लिखे गए थे, बिकॉज दे हैड डिवाइनिंग आइज, दे हैड नॉट स्किल इनफ योर वर्थ टू सिंग, ठीक है। उसके बाद फिर वो अपने जो फेयर यूथ है, अपना जो फ्रेंड है, उसको बोलते हैं कि इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनमें कमी रह गई, वो जो ओल्ड पोएट्स थे उनके अंदर कमी रह गई, वो तुम्हारी तारीफ पूरी तरीके से नहीं कर पाए हैं, वो उनके अंदर इतनी स्किल्स नहीं थी कि वो तुम्हें प्रेज कर पाएँ, ठीक है, इतने सारे कुछ पोइट्रीज और लिखने के बावजूद। एंड फिर उसके बाद लास्ट 2 लाइन्स में वो एडमिट करते हैं, ठीक है, शेक्सपियर खुद एडमिट करते हैं कि आज हम जो इस प्रेजेंट डे में रह रहे हैं, तुमको सामने से देख रहे हैं, ठीक है, हम भी तुम्हें प्रॉपरली प्रेज नहीं कर सकते, हमारे अंदर भी वो स्किल्स नहीं है जो हम तुम्हें प्रेज कर सकें, ठीक है। तो शेक्सपियर लास्ट के 2 लाइन्स में ये मान रहे हैं, ये एडमिट कर रहे हैं कि उनके अंदर भी ये स्किल नहीं है कि वो तुम्हारी तारीफ कंप्लीटली कर सकें, मतलब वो फेयर यूथ की तारीफ कंप्लीटली कर सकें। इसलिए वो लास्ट में बोलते हैं कि वी हैव आइज टू वंडर, मतलब हमारे पास, हम देख तो सकते हैं, जो पुराने पोएट्स थे वो देख नहीं सकते थे, दे प्रोफेसाइज्ड, ठीक है, वो सिर्फ प्रोफेसी किए कि क्या होगा, ठीक है, लेकिन हम तुमको अपने सामने देख कर भी तुमको प्रेज नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी स्किल्स नहीं है कि हम तुम्हें प्रेज कर सकें। तो that is why in the last line poet says कि we have eyes to wonder, हम देख सकते हैं, तुम्हें देख कर सरप्राइज हो सकते हैं, बट हमारे पास टंग नहीं है तुम्हें प्रेज करने के लिए, ठीक है। तो इन दिस वे द पोएट is praising the fair youth, ठीक है। Okay, so in this way we have completed the poem or sonnet 106, When in the Chronicles of Wasted Time. I hope you all have understood. If you have not understood or you have any doubt, you can go through the video again and you can understand it. And please go through the sonnet number 18 video, because you will get to understand it in detail, what sonnet is and what Shakespearean sonnet is. Okay? And in this way we have completed the sonnet, and for now, goodbye.